Good morning everyone, welcome back. So in our previous video we have discussed about the diversity. Diversity मतलब कि the state of being different, and our India is a diverse country. We all know that because there are many religions which we are following in our country. We have discussed about the geographical diversity because geographical diversity means the diversity where the means it is different according to the place where they live. So it is known as a geographical diversity, not about the dress, living, everything comes in that. Now comes economic diversity. Now what is economic diversity? The economic activities of an area are influenced by the area's geographical conditions. In different regions of the India, different crops are grown. Yes, we know that कि बहुत सारी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग crops grow होते हैं, और economical activities भी area के geographical location और conditions पर ही depend करती है. Agriculture जो है वो एक primary occupation है people का, जो कि northern plains में रहते हैं. The people over the northern plains they are having a very fertile terrain. So agriculture is their primary occupation. यही सबसे पहले वो लोग प्रेफर करते हैं. While Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu mainly grow rice, Punjab, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh mainly grow wheat, and for people living in the coastal areas like Kerala, Tamil Nadu and West Bengal and Maharashtra, fishing is an important economical activity. So आप देख रहे हो कि लोग कहाँ पर रह रहे हैं, उस हिसाब से उनका जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो बिजनेस होता है, it depends on that कि अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा suitable है, अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा suitable है. So this is how the diversity acts. In cold regions like Ladakh, जहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज द रीजन इज कवर्ड विद द स्नो फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर. मतलब मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर स्नो ही होता है. देन हाउ यू कैन डू द एग्रीकल्चर इन स्नो. सो ऑल्सो दिस रीजन डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल. वहाँ पर एडिक्वेट मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी रेनफॉल भी नहीं होती है. रियरिंग शिप्स एंड Yaks is the main occupation of the people over there. वहाँ पर वो crops grow नहीं कर सकते because it has been covered with the snow. So what they will do is they will rear the animals. वो animals को पालेंगे like yak and sheep. This will be their main occupations. Kashmir goats found in this region product the highly expensive pashma wool. वहाँ पर वो लोग goats को वहाँ पर रखेंगे और उनके जो wool है जो कि बहुत ही ज़्यादा ये वाला expensive है पश्मीना wool, वो वहाँ पर वो बेचेंगे. Which along with an apricots form the region's main export. वो वहाँ से फिर export भी होता है दूसरे countries के लिए. So this is the main business over there. इन ईस्टर्न एंड सर्दर्न ईस्टर्न राजस्थान. अभी जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ का जो मेन क्रॉप है जो ग्रो होता है दैट इज जुआर, बाजरा, मेज, ऑयल सीड्स एंड व्हीट. और वेस्टर्न पार्ट है जो कि हमारे स्टेट का दैट इज ड्राई एंड एरिड. तो कैमल जो है वो वहाँ पर राजस्थान में यूज़ होती है और वो सबसे उनका इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो जाता है. हियर इज़ एन इमेज गिवन टू यू जिसमें फिशिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं उनके लिए. सो दैट इज शोन to us that the fishing has been important for the people who are staying near the oceans. Moving to the next one, which is the religious diversities. Now religious diversity. India has been at home to the various religions. India जो है वो एक ऐसा country है जहाँ पर a lot of religions you can find it out. You can find out a lot many religions. The oldest religion of India is Hinduism. सबसे पुराना religion की अगर हम बात करें then that is Hinduism. Other main religion that thrive in the India, बाकी के जो important religions हमारे इंडिया में है वो है इस्लाम, Christianity, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism and Sikhism. हमारा जो constitution है that has declared that India is a secular country where all the citizens enjoys right to the freedom of the religion as a fundamental right. हमारे country में हमारा country जो है उसे हम secular country गिनते हैं. Secular country means कि जहाँ पर सारे लोगों को right मिलती है. They all have right to the freedom of the religion. उन्हें जो भी religion choose करना होता है they have right to choose. We are not forcing them to choose any religion. हम उन्हें force नहीं करते that you have to follow this religion compulsory. It's ultimately their choice कि उन्हें कौन सा religion choose करना है and where do they what do they have to follow. So this is a best example of diversity in India, or you can say that India is a secular country.
कल्चरल डाइवर्सिटीज। नाउ व्हाट आर कल्चरल डाइवर्सिटीज? कल्चरल डाइवर्सिटीज क्या है? पीपल बीइंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लोग जैसे अलग अलग जगहों पर रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, दे सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल्स। लोगों की लैंग्वेजेस अलग, उनका अलग खाना और उनका अलग फेस्टिवल्स। एक्चुअली so sorry, there are 22 languages listed in the 8th constitution, 8th schedule of the Indian constitution. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए that in our Indian constitution there is an 8th schedule of languages in which there are total 22 numbers of the languages listed in that. Analyzing contemporary sources. Now this is what we are going to read. Indian constitution lays down the rights to the equality as a fundamental right. Fundamental rights क्या है? मतलब कि यहाँ का जो सिटीजन है इंडिया का, उनका क्या हक है? What is their right to do everything? So this is the right. और right में क्या आता है? Right to equality. मतलब कि उन्हें equality मिलना वो उनका हक है। So sorry. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब कि बंद कर देना है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव। ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये नहीं कर सकता है, ये बाहर से आया है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी वर्किंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। बहुत सारी जगहों पर ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, जैसे कि रिलीजन, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कास्ट, ये इस कास्ट का, ये उस कास्ट का है, ये सेक्स मीन्स ये गर्ल है, ये बॉय है, या ये कौन सी जगह से आया है, ये सब चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप हो जाना चाहिए, भेदभाव बंद हो जाना चाहिए। सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब कि इक्वल चांसेस मिलने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उनके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब कि किसी भी जॉब के लिए जाओ तो वहाँ पर उन सब लोगों को इक्वल चांसेस मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि हम इन्हें ही चांस देंगे, ये नहीं देंगे। इट शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स एंड ऑल ऑफ दैट। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन मतलब कि पूरी तरीके से उसे निकाल देना चाहिए। अनटचेबिलिटी मतलब कि जो अछूत लोगों का जो ये होता था पहले कि हम इन्हें छू नहीं सकते, हम अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, वो भी टोटली निकल जाना चाहिए। इट शुड बी डन। सो वाई डू यू थिंक इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी? आपको लगता है कि हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी अभी भी है? अगर है तो कैसे है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लाइव लेक्चर के अंदर। What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी होने से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है? Diversity adds varieties to our life and enriches it significantly. It teaches us to be an open-minded and tolerant. Diversity हमारी लाइफ में होने से क्या होता है कि वो हमें significantly बहुत ज़्यादा importance देता है और हमें वो सिखाता है that how we should be an open-minded, हम open-minded कैसे रह सकते हैं, and how we can be tolerant, हम कैसे सारी चीज़ों को easily accept कर सकते हैं. It helps us to evolve as a better human being because we respect people with different religions, beliefs, viewpoints, customs and cultures. डाइवर्सिटी होने से मेन एडवांटेज ये होता है कि हम अच्छे इंसान बनते हैं। हाउ? क्योंकि हम सीख रहे हैं दूसरों को रिस्पेक्ट करना। वी विल रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग लोगों को, अलग अलग रिलीजन्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनके बिलीव्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को और उनके कस्टम्स एंड कल्चर्स को भी, उनके रीति रिवाज को भी हम एक्सेप्ट करेंगे और हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. It is amazing that in spite all our geographical, economical, religious differences, we Indians share some strong similarities. The vastness of our country or the physical barriers have never been able to discourage the movement of the people from one part of the country to the another. अब आप समझ रहे हो ये क्या बताया यहाँ पर? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट गिवन टू अस कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद हमारे अलग अलग जगहों पर रहना, अलग अलग खाना, अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग ड्रेसिंग्स, अलग अलग लैंग्वेजेस का भी होना, अलग अलग व्यूज़ एंड कस्टम्स, अलग अलग बिलीव, सब चीज़ों का अलग होने के बावजूद भी वी इंडियंस ऑलवेज स्टूड स्ट्रॉन्ग. हम सब लोग यूनाइटेड होकर एक साथ स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़ के साथ स्टैंड हुए थे. हमारा इतना वास्ट कंट्री होने के बावजूद भी
बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स भी आते होंगे। फिजिकल बैरियर्स मतलब कि बहुत सारे सवाल उठते होंगे, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे झगड़े, दंगे फसाद सब होता होगा हमारे इंडिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा वास्ट कंट्री है हमारा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी। इट इज़ मतलब बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वी ऑल स्टैंड वेरी वेरी यूनाइटेड, एंड आई एम रियली very proud to be an Indian, and I also hope that you all are also so proud of being an Indian। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, सब लोगों का अलग अलग है, but ultimately when we talk about India, we all are united। Unity was exhibited clearly during the struggle for the independence for the British rule. Thousands of the Indians from the various parts of the countries and from the diverse cultural backgrounds fought against the British exploitations of the India and finally forced them to leave our country। Unity जो है ना वो बहुत पहले से चलती आ रही है, फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमें स्ट्रगल कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ द इंडियंस जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में रहते थे, जिन लोगों का अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स था, सब साथ में मिलकर एक साथ उन लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनका जो अत्याचार था उनके सामने सब लोगों ने साथ में मिलकर फाइट आउट किया। एंड वी हैव फोर्स्ड देम टू लीव आवर कंट्री, हमारे देश को छोड़कर जाने के लिए हमने उन्हें मजबूर कर दिया था। सो दिस पावर वी आर हैविंग इन यूनिटी इन इंडिया। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द वॉर, जहाँ पर वॉर की बात हो रही है, इंडो चाइना वॉर था 1962 में, कारगिल वॉर था 1999 में, उस टाइम पर भी, एंड इन द फेस ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़, जब नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं लाइक बड़ा बड़ा अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जब एट दैट टाइम व्हेन द एंटायर कंट्री कम्स टुगेदर एंड मीट द चैलेंजेस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉट ओनली वन बट आई कैन गिव यू एन थाउजेंड्स एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। केदारनाथ में अगर फ्लड आने की बात हो रही है, या फिर कच्छ में भूकंप आ रहा है, मोरबी में बाढ़ आने पर, या फिर आप कहीं पर भी चले जाओ, केरला, तमिलनाडु, कहीं पर भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, देन वी ऑल ऑलवेज स्टूड टुगेदर, हम सब लोग साथ में, वी ऑल वेर ऑलवेज टुगेदर। अगर हम वॉर की बात करें तो अगर वो ब्लैक डे की तरह भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारे इंडियन सोल्जर्स, 45 सोल्जर्स वेर बिन, मतलब उन लोगों को मार दिया गया था ऑन दी वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी। At that time also we all were united during the natural calamities। मोरबी में जब बाढ़ आई थी तब भी सब लोग यूनाइटेड थे। Every states have supported मोरबी so much। कच्छ में जब भूकंप आया था, जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब भी सब लोग यूनाइट होकर everyone stood together। एंड बाकी सब चीज़ों पर तो जानने की बहुत देर की बात है, अभी जो चल रहा है हमारा कोरोना टाइम, उसमें भी कितने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से मदद की है सब लोगों की। वी ऑल ऑलवेज स्टूड टुगेदर। अभी भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि रात दिन जागते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, हम सब लोगों की जान बचाते हैं। वी एवरी स्टेट्स कम टुगेदर। पूरे इंडिया में कहीं पर भी तकलीफ आती है ना, सब एकजुट हो जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं। वी ऑल आर सच अ बिग फैमिली, वी ऑल आर, ट्रस्ट मी, वी ऑल आर वेरी बिग फैमिली। जैसे आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी बीमार होता है तो आप सब लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हो, यू ऑल हेल्प देम। सिमिलर वे इंडिया इज़ अ बिग बिग फैमिली, जिसके अंदर आप सब लोग, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, वी ऑल स्टूड टुगेदर ऑलवेज। एंड this will happen every time because lockdown won't be possible in India, a country like such a big country, 130 करोड़ इंडियंस, करोड़ में इतने ज़्यादा जो है 130 करोड़ जनता का लॉकडाउन करना, it's merely impossible in any other countries. It was been possible in our India. It proves the unity that we have among ourselves, and I want you to be proud about your country India. I really want you all to be very very proud of being an Indian citizen. Thus, by coming together, the Indians demonstrate how, despite being different, they constitute one nation. Unity in diversity surely defines India appropriately. इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि कोई भी दिक्कत आने पर हम सब लोग साथ खड़े रहते थे। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड दैट बाय बीइंग डिफरेंट इन ऑल दी वेज, यहाँ पर रहने वाले लोग सब लोग सारी तरीक़ों से अलग है, बट देन ऑल्सो दे आर ऑलवेज वन नेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दे आर ऑलवेज, एंड इंडिया इज सेटिंग अ बेस्ट एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग होने के बावजूद एक होना।
So here we have completed our chapter number 20, Unity in Diversity. Sorry, Understanding Diversity. So please tell me if you have any doubt related to this chapter. Thank you everyone and have a nice day.